Everyone, and welcome back to my channel. Today we are going to discuss our illustration for calculation of statement of affairs and deficiency account. In the last video we have talked about the insolvency, its basic rules and the laws that is applicable in the cities or the states of the country. So today we are going to discuss an illustration based on this topic. In the last video, we have also talked about the specimen of statement of affairs, and we all are aware about the concept that on the left hand side we record our liabilities, whereas on the right hand side we record our assets, just like the concept of a balance sheet. But in case of a statement of affairs, we record all the liabilities as per the list. That means on the left hand side we have list A for unsecured creditors, list B for fully secured creditors, list C for partially secured creditors, and list D for preferential creditors. That means total 4 list will be there. Whereas on the right hand side we have list E for the properties of the persons, whereas list F for the book debts, list G for the bills of exchange, and list H for the deficiency or the balancing figure of deficiency account. And this is how we prepare the specimen of statement of affairs. So let's start with the practical. And here is a practical which says that from the following particulars prepare the statement of affairs and deficiency account of Ramesh of Allahabad, who is an insolvent debtor. Unsecured creditors amounted to rupees 15,050. Creditors partially secured rupees 19,080, holding security of the value of rupees 1800, which is estimated to realize only 6,000. That means कि हमारे पास एक क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो 19080 का लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रखे हैं. उन्होंने हमसे एक एसेट्स तो ले रखा था 18,100 का, बट द एक्चुअल वैल्यूएशन विल कॉस्ट ओनली हाउ मच 6,000. दैट मीन्स जो डिफरेंस अमाउंट आएगा and that will be equal to how much 13080. that will be calculated in the case of partially secured creditors, और बाकी अमाउंट वहाँ से हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे फ्रॉम द सिक्योरिटीज. Whereas the preferential creditors amounted to rupees 500, bills receivable of rupees 2060, upon which it is estimated that there will be a liability of 2080. Stock in trade was rupees 10,110, estimated to realize only 8,000. Book debts were goods 7860, bad and doubtful was 650, realize only rupees 178. दैट मीन्स आपके पास जो 650 के डेटर्स हैं उनसे हमें रिलाइज सिर्फ कितने का होगा, आपसे 178 लिखेंगे. दैट मीन्स जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम राइट हैंड साइड अपने एसेट्स कॉलम में लिख देंगे. देन देयर इज अ प्लांट एंड मशीनरी, उसकी भी रिलाइज वैल्यू दे रखी है. देन वी हैव कैश, ऑब्वियसली कैश विल बी रिलाइज इन फुल वैल्यू. कैश कुछ भी हो जाए वो हमेशा किस पे रिलाइज होता है, फुल वैल्यू पे ही रिलाइज होता है. Then it also says that he started the business 5 years ago with a capital of 25,000. Trading after interest on capital was rupees 1,000 per year, and the profit for the first year, and there were losses for the subsequent. सिर्फ पहले साल में हमें प्रॉफिट था, बाकी 4 साल हमें क्या हुआ, लॉसेस बियर करना पड़े. और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट विल बी 1,000 पर ईयर. दैट मीन्स 1,000 into 5 हम कर देंगे क्योंकि हमें 5 साल का सॉल्व आउट करना पड़ेगा. द रेट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो गिवन 900 पर ईयर. दैट मीन्स 900 into 5 करेंगे क्योंकि 5 साल का हमारे पास ड्राइंग वगैरह भी दे रखा है. वी हैव स्पेकुलेशन लॉस ऑल्सो. तो दीज आर द बेसिक items that is given in order to prepare statement of affairs and deficiency account. So let's start with the statement of affairs. As we all know that the statement of affairs will be prepared in a specimen or as per the list given in this case. So we have list A, that is unsecured creditors. And the unsecured creditors, it has already said that there will be a liability of how much 15050. ये हमारी क्वेश्चन में ही दे रखी थी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की थी. और साथ में जो मार्केट में बिल्स रिसीवेबल को हमने डिस्काउंट किया था वो अलग से हमारी एक और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई. तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे वी गेट द आंसर फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट है 15,330. लिस्ट बी डिस्क्राइब्स द फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ऐसे क्रेडिटर्स जिन्होंने जो भी अमाउंट लोन दिया है दैट इज बीइंग फुल्ली कवर्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी दैट इज बीइंग केप्ट एज मॉर्गेज. जितना भी हमने पैसा दिया है वो अगर लोन अमाउंट के अगेंस्ट में ही क्या हो जाता है, सिक्योर्ड हो जाता है, तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, फुल्ली सिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाता है. टॉकिंग अबाउट पार्शली सिक्योर्ड, एज आई हैव टोल्ड यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि आपका 19080 का लोन था, बट जो हमने सिक्योरिटी दे रखी थी उसकी वैल्यूशन भले ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने मार्केट में सेल किया तो उसकी रिलाइज वैल्यू सिर्फ कितनी आई, 6,000. दैट मीन्स 13080 इज येट टू बी डिस्कवर्ड और कवर्ड फ्रॉम द पब्लिक.
Then talking about the preferential creditors, that is rupees 500, already given the question. The one and the most important thing that preferential creditors are not written in the outside column, they are obviously written inside the column because they are the first one to receive the money from the assets being realized. That means जैसे ही assets बिकेगा तो सबसे पहले जिसका पैसा हम देंगे वो कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में. दैट मीन्स दे आर ऑलमोस्ट द केस ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड. कुछ भी हो जाए सबसे पहले किसको पैसा मिल जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड. एज वी ऑल कैन सी दैट वी कैन राइट आर सिंपल एसेट्स. जितने भी एसेट्स है वी हैव रिटन देयर बुक वैल्यू एंड द रियलाइज वैल्यू ऑन द आउटसाइड. तो कैश 2 रुपए का था वो 2 में ही रियलाइज होगा. स्टॉक इन ट्रेड 10,110 रुपये 10,010 रुपये का था वो 8,000 ही रियलाइज होगा. मशीनरी की 12,500 थी, उसकी रियलाइज वैल्यू 5,500 दे रखी थी. लैंड की 8,000 की वैल्यू 5,000 रुपये दे रखी. दैट मीन्स टोटल रियलाइज वैल्यूज हाउ मच, 18,502. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गुड वैल्यू विल डिराइड इन फुल. जितने भी गुड डेटर्स है वो तो पूरा देंगे पैसा, वो तो आपसे कुछ भी पैसा नहीं छुपाएंगे, ना वो चोरी करेंगे. बट देयर वाज सम डाउटफुल डेटर्स, यानी कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जिनको हमने पैसा दिया था बट वो हमको हो सकता है पैसा ना दे या कम दे. तो अगर कम देंगे तो कितना देंगे, 178 is the amount that we can recover from them. That means this is the total amount that we are going to receive from the full assets of that person. यानी अगर उनके एसेट्स को, सारी एसेट्स को हमने मार्केट में सेल कर दिया तो उसके बाद भी हमको सिर्फ कितना मिलेगा, 26,540 रुपीज़. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिडक्ट द प्रेफरेंस. अब इस अमाउंट से हम पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे. तो पेमेंट पे हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को अगर हम पेमेंट कर दिए तो अब हमारे पास बचा कितना, 26,040 rupees. That is the remaining amount, whereas the total liabilities of are how much, 28,410. यानी जो भी बैलेंस शीट फिगर होगी उसको हम किस नाम से डाल देंगे, लिस्ट एच डेफिशिएंसी. दैट मीन्स वी नीड टू पे अ लाइबिलिटी ऑफ 28,410 but we are left with cash of only rupees 26,040 rupees. That means the difference of 2370 will be recorded as per the list H of deficiency account. List H of deficiency account. So this is how you are going to prepare the specimen of statement of affairs. तो इस तरीके से हम अपना statement of affairs को क्या करते हैं, solve करते हैं. Let's start with the other part of the question, that is the deficiency account. We all know that we record all types of revenue from the left hand side whereas all types of losses on the right hand sides. हमें जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो लेफ्ट में रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं वो हम राइट में रिकॉर्ड करते हैं. आपका लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भाई पहले साल हमें प्रॉफिट हुआ था जिसको हमने लेफ्ट में लिखा 6020. बाकी क्वेश्चन सेज दैट कि आपके नेक्स्ट 4 ईयर्स तक लॉस हुए थे, उन्हीं चारों साल को ऐड करने के बाद वी गेट द लॉसेस फॉर द बिजनेस. द ड्रॉइंग्स वॉज रुपीज़ 900 पर मंथ. तो 900 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा. बैड डेब्ट्स, दैट मीन्स जो हमारे गुड थे वो तो पूरा हो गए थे, जो बैड एंड डाउटफुल का जो डिफरेंस है जो हमें रिसीव नहीं हुआ, वी नीड टू रिसीव 650 बट ओनली 178 वॉज रिसीव. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना, 472 का, वो हम कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, बैड डेब्ट्स. दैट इज अनदर लॉस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू डिटरमाइन द रीजन फॉर द लॉसेस. अच्छा, हमें लॉस क्यों हो गया, क्योंकि स्टॉक अलग वैल्यू से रियलाइज हुआ, मशीन अलग वैल्यू से रियलाइज है. लेट्स सी बैक टू द कॉन्सेप्ट. आप यहाँ पे देखिएगा, हमें अपने लॉसेस का रीजन पता करना है. तो पहला रीजन आप देखोगे स्टॉक इन ट्रेड. तो स्टॉक कितने का है, 10,010 रुपये का है, 10,010 रुपये का है, लेकिन उसकी रियलाइज वैल्यू कितने की, 8,000 रुपये की. दैट मीन्स कि हमें कितने का लॉस बियर करना पड़ा इसकी वजह से, 2,010 रुपीज़ का. उसी तरह डेटर्स की वैल्यू आप देखो 650 का था, 178 रियलाइज हो गया. ये डिफरेंस भी हमारा एक रीज़न बन जाएगा फॉर बेयरिंग द लॉसेस. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने हर एक एसेट्स के डिफरेंस से निकालेंगे भाई किसकी वजह से हमें इतना लॉस क्या करना पड़ा, बेयर करना पड़ा. तो वी हैव रिटन ऑल द लॉसेस. वी हैव रिटन द लॉसेस फॉर स्टॉक, मशीनरी, बैड डेब्ट्स एंड दिस इज इन द कंटिन्यूड पार्ट, थोड़ा सा कंटिन्यूशन में ही होगा. एंड दैट हैव बिल्स डिस्काउंटेड का लॉस बियर करना पड़ा, लैंड के डिफरेंस था. सिक्योरिटीज़ थी जो हमारी 18,100 की सिक्योरिटी थी, लेकिन उसमें से हमें रियलाइज सिर्फ कितना हुआ था, 6,000. तो उसके चक्कर में तो हमें लॉस आया कितने का, 12,100 का. तो दैट इज द अमाउंट 12,100. एंड लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू सिंपली टोटल द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. यू विल फाइंड दैट कि अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल है, दैट मीन्स यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन अ राइट वे. आप आराम से लिख देगा. वन मोर थिंग वी हैव टू राइट दैट कि यहाँ
पे जो डेफिशिएंसी अकाउंट का फिगर आता है फ्रॉम लिस्ट एच, वी हैव टू राइट दैट फिगर ऑल्सो। तो अगर आप कंटिन्यूशन बनाओगे तो आपका पूरा डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल क्या आएगा, कंप्लीट होकर के टोटल दैट विल बी अमाउंटेड रुपीज हाउ मच, 32,972। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।